ओके तो हम बात कर रहे हैं इन विवो जीनोम इंजीनियरिंग टूल यूजिंग क्रिस्पर एरे। तो क्रिस्पर इज क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। क्लस्टर्ड मतलब इकट्ठे एक साथ, रेगुलेशन करने का काम करते हैं फॉर रेगुलेटरी। इंटरस्पेस्ड एक साथ नहीं है, क्लस्टर्ड है लेकिन एक साथ नहीं है, बीच बीच में शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स भी हैं। ये है क्रिस्पर एरे, ठीक है, और इससे एसोसिएटेड Cas9 जीन्स। तो क्रिस्पर एरे सीक्वेंसेस का एक एरे है जिसमें कि दे आर इंटरस्पर्स्ड रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं और स्पेसर्स हैं, ठीक है। अभी दिखाई मैं फिगर दिखाऊंगी। और संग में इसमें Cas9 जीन्स भी है। तो इट इज अ क्लस्टर, इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेवरल जीन्स, सेवरल Cas genes, and then a cluster of array of repeats with spaced sequences, ठीक है। And I particularly like this tool because these days we talk so much about translational research and everybody tries to focus on translational research. The discovery of CRISPR uh, is a discovery which is a curiosity driven discovery. So maybe I will share one paper where they have compiled the storyline of the discovery of CRISPR, how different scientists have contributed, and how this person he was a PhD student and he was working on a bacteria where I think he was trying to study how the cell, concentration of salt actually affect the I guess cutting specificity of restriction enzymes. So he was his PI's his PI's observation was that if you vary the salt concentration, then the specificity of restriction digestion affect that affects the specificity of restriction digestion, concentration of salt. So that was a question that he was studying. But during this process, he also identified several repeats in that process, right? When he was doing PhD. And that time, whatever the genome sequences were available for the bacteria, and he was working on archaea, and whatever the genome sequences were available, when he tried to blast it with those sequences, he could not really identify what is what. So because he was able to clearly see that there were palindromic sequences, repeat sequences, he was more focused on the repeats. That's why the repeat is getting, palindromic repeats. The repeats are getting so much highlighted here. And then, well, this was an observation which would not take him too much further, क्योंकि जो observation आपने लिया, आपके पास बहुत ज़्यादा tools नहीं थे उस समय ये समझने के लिए कि आखिर ये हैं क्या. But it does not fit in the main hypothesis, so he moved on. But when he became a PI, and then he was appointed in a lab where he was not having much facilities, lab was not established, only the space was given to him. So he was having his system only, computer, right? And he was good in analyzing images and also he thought that now let's, वो डेटा निकालते हैं अपना पहले वाला जो था, देखें क्या हुआ, कुछ और कहीं से मैच करता है, पता तो चले वो रिपीट्स थी क्या. So he just blasted it with the existing sequences, and that time more and more sequences, मेरे ख्याल से कुछ साल बीत गए होंगे, so more genomes were sequenced and they were having more sequences to align with. And that is when eventually he learned that these sequences which were embedded in the palindromic repeats were actually matching with the bacteriophage. I did not remember, maybe the P1 bacteriophage or something, but देखना पड़ेगा. That is when he started thinking कि this is not something which is very simple. ठीक है. So that is the track of discovery. You will see that how many and many and many more people jump in to this area eventually. But you see, the beauty is that this is simply a curiosity driven research. You have an observation, you took that observation very seriously, and now you are following up with that, right? And now you see, now what we are seeing, people are fighting for patents, right?
There are so many people US में और आई थिंक यूरोप की लैब्स में या कनाडा की 2 या 3 जगह की लैब्स हैं जिनमें कि बकायदा कोर्ट में केसेस चल रहे हैं कि CRISPR-Cas का जो टूल बना है उसका उसका पहला पेटेंट किसने दिया, उसकी लाइसेंसिंग किसको होनी चाहिए, यू नो, मार्केट। तो बट आप एक ही चीज देखिए कि द डिस्कवरी इटसेल्फ इज नॉट अ ट्रांसलेशनल रिसर्च, इट्स अ डिस्कवरी ट्रूली फंडामेंटल साइंस। चाहे आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी को उठा लीजिए, चाहे आप यू नेम इट, several of discoveries are fundamental science, curiosity driven research, observation driven research, and then people with their ideas, thoughts use it for the ट्रांसलेशनल पर्पस। तो मैं हमेशा इस बात को बहुत एम्फोसाइज करती हूँ कि whenever we, you know, when we, जब भी हम इस गंगा में बहते हैं कि अरे हम तो ट्रांसलेशनल रिसर्च करना चाहते हैं, तो विच इज गुड, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, दैट इज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन कि हम किसी चीज को ह्यूमन मैनकाइंड के लिए यूज करना चाहते हैं, लेकिन हम उस प्रोसेस में फंडामेंटल रिसर्च को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये जो इमेज मैंने इंक्लूड किया है इसके बारे में बस मैं जो बात अभी जस्ट मेंशन हुई कि ये एक बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम है, राइट, दैट द CRISPR-Cas9 जो सिस्टम है, जब हम CRISPR-Cas9 इसके बारे में हम 2 एंगल से बात कर रहे हैं। एक एंगल वो जिसमें कि ये बैक्टीरियल सिस्टम, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ immune system against pathogens which are bacteriophages, ठीक है। So that is the left side of this slide. Is it clear, right? That's clear, you can see that. And the right side of this slide is the tool part, right? So tool part is when we are using the system as a tool to modify the genome, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर से ये चीजें मोटा मोटा देख लें कि किस तरीके से बैक्टीरिया में ये सिस्टम जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उस पर ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं जिसको ध्यान देना चाहिए, इज अ ट्रेसर आरएनए। So this cluster has a tracer RNA. It has Cas9 and other Cas proteins, right? And it has a CRISPR array. So CRISPR array has the interspersed palindromic repeat and then these sequences. Or when it is synthesizing, what is happening? The pre-CRISPR RNA is synthesized as a long RNA molecule, and the tracer RNA is also synthesized. हम इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे अभी. And then final assembly actually has this the Cas9 protein along with the tracer RNA and pre-CRISPR RNA. And RNase-3 actually RNase-3 what it does इसके बारे में मैं बात करूंगी थोड़ा सा। जो pre-CRISPR RNA उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मल्टीपल कलर से जो इन्होंने दिखाने की कोशिश किया वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अलग अलग वायरसेस से अलग अलग पैथोजन से उसने अलग अलग पोर्शंस लेकर उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने जीनोम में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, बट जस्ट ट्राइंग टू जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ आइडिया दैट हाउ द CRISPR-Cas9 system is getting assembled for the final immunogenic action. So the tracer and the pre-CRISPR with the Cas9 becomes an assembly, and then it requires a PAM sequence. It binds to the target DNA, और टूल में जो सिंगल गाइड आरएनए जिसको कहते हैं, फिर हम उसको प्री-CRISPR आरएनए और ट्रेसर आरएनए ना कह के सिंगल गाइड आरएनए कहते हैं, जिसमें कि हमने क्या कर दिया है, जो सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है उसको ट्रेसर आरएनए के साथ ज्वाइन कर दिया। इट्स जस्ट द इंट्रोडक्टरी स्लाइड, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट इसलिए इसको दिखाया है जिससे कि ये समझ में आए कि ओवरऑल ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। विल बी टॉकिंग अबाउट the defense system of the how the CRISPR is acting as a defense system, how is it acting, what is the ideas and strategy. अब हम इसके यहाँ बात करेंगे किस तरीके से ये एक बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हमको ये जानना बहुत जरूरी है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की तरह से नहीं है कि अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अपनी टारगेट साइट्स हैं। वंस यू नो द टारगेट साइट, यू नो how this thing is cutting, right? We need to really understand the mechanism of CRISPR to use CRISPR defense system of the bacteria, to use it as a tool. So we need to really look deeper into it. So if you, when I am talking about this slide, if you have any difficulty, then just let me know.
इससे पहले बस एक स्लाइड और दिखाऊंगी। हो क्या रफली हो क्या रहा है, there are two phases. One phase is a phase where a bacteriophage infects the bacteria, right? तो क्या हो रहा है, that this bacteriophage inject its genetic material into the bacteria, right? And those Cas2, Cas not Cas9, ठीक है, Cas2 and Cas1 proteins, they take this piece of genetic material that is being, that is being coming outside. They are recognizing it as a foreign body, and they are taking it to the bacteria, to the bacterial system. Then this piece is being cut and is stored and inserted in the bacterial genome. देख रहे हो? So this is the beauty, that to remember the invader, bacteria is actually cutting the genetic material and putting it in its array, so that later on in the second phase of infection, when the same bacteriophage infects the bacteria, this this genetic material is being recognized. This system, this is sort of a surveillance system. They are sort of circulating in the bacterial inside the bacteria, and they are trying to see कि भाई कोई ये नया piece of DNA है, या ये कोई ऐसा है जो कि ये तो पहले भी हमने देखा है, हमने हमारे पूर्वजों ने. So this is, they match it, and if they found the match, then this foreign piece of DNA will be degraded. What bacteria is doing, it has these DNA repeats. In between the DNA repeats, every time it gets infected and it identifies the bacteriophage or the foreign DNA as an invader DNA, it keeps a small piece of that DNA by incorporating in its own system. And this different invaders are being identified uniquely by storing these small pieces, by storing them separately in between the palindromic sequences. Does it make sense? Right? And it has different Cas proteins, group of Cas protein which are required during the initial stages, where the foreign DNA is being carried to the system and incorporated, all sort of those things. And then the Cas9 protein, जो कि जिसका की function second term में आ रहा है, when it is getting the foreign DNA is getting it makes complex with the tracer RNA and the invader, the CRISPR RNA. It is on the surveillance, and whenever it finds the foreign DNA, it degrades. ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी कंफ्यूजन एटलीस्ट इस बात में तो जरूर होना चाहिए कि ट्रेसर आरएनए क्या है और उसकी हमें क्यों जरूरत है, कि हो क्या रहा है. राइट, इस असेंबली में हमने, मुझे लगता है क्रिस्पर आरएनए तो समझ में आ गया होगा कि क्रिस्पर आरएनए क्या है, और Cas9 डेफिनेटली प्रोटीन है और एंडोन्यूक्लियस है, और ट्रेसर आरएनए क्या है, ट्रेसर आरएनए का इस चीज में क्या रोल है और क्यों हमको ट्रेसर आरएनए की जरूरत है, इसके बारे में बात करेंगे. तो अब आप ये देखें, ये इमेज थोड़ी डिटेल्ड इमेज है, और इस इमेज में आपको ये चीजें किस तरीके से जीनोम में ऑर्गेनाइज है आपको दिख रहा है. दिस इज अ ट्रेसर आरएनए, Cas9, other Cas9 genes, and then CRISPR RNA 1, 2 and 3, whatever. ठीक है, डिफरेंट वायरस इंसर्टेड. यहाँ पे दो चीजें और हैं, यहाँ पे टारगेट लिखा है इन्होंने और टारगेट के साथ लिखा है पैम. पैम के बारे में भी एक बार डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द ट्रेसर. सो यू सी, for the degradation of a RNA, whenever RNA, in general RNA is single stranded, right? But when it makes a double strand, then it is more likely to be attacked by the endonucleases. ठीक है ना, ये तो सबको पता ही होगा. तो you see what is happening, this tracer RNA has such a beautiful ability to specifically align with the repeat sequences. आप देख रहे हैं कितना स्मार्ट है बैक्टीरिया, कि उसने होमोलॉगी बनाने के लिए, आरएनए डुप्लेक्स बनाने के लिए एक ट्रेसर आरएनए यूज किया है, और इंडिपेंडेंट सीक्वेंसेस को सेपरेट करने के लिए वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यूज किया जो कि सेम है या सिमिलर है.
जिससे कि एक ही ट्रेसर आरएनए की मदद से वो एक छोटा पोर्शन ही सही लेकिन एक ऐसा पोर्शन बना सके जहां पर कि ये होमोलॉगस पेयरिंग हो सके। जहां जहां पर भी प्री क्रिस्पर आरएनए के साथ ट्रेसर आरएनए ने होमोलॉगस होमोलॉगी करके डुप्लेक्स बनाया है, वहां वहां पर आरएनए 3 इसे काट दे रहा है, राइट। तो अब इससे क्या फायदा हो रहा है? द एडवांटेज इज बीइंग दैट यू हैव ऑल द इंडिविजुअल क्रिस्पर आरएनए सेपरेटेड। तो ट्रेसर आरएनए इज रिक्वायर्ड, अगर हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कहें, to cut the long pre-CRISPR RNA into pieces, which are specific for individual pathogen. This is the actual assembly. ठीक है, जिस तरीके से कि अब जब आपके पास individual CRISPR RNA with the tracer RNA है, and then it is assembled with the Cas9 protein, then it is on surveillance. Whenever it find a foreign DNA with a homology, you see this homology could be 18 to 20, 22 base pair long, then it cuts that foreign DNA. And whenever the foreign genetic material is being cut, it is getting degraded eventually. हाँ, तो ये मैंने बता दिया। अब हमने यहाँ पर मैंने ट्रेसर का बता दिया इम्पोर्टेंस, लेकिन अभी हम ये बात करने वाले हैं जिस बात को इन्होंने थोड़ा सा उठाया कि भाई किस तरीके से अलग अलग क्या हुआ। RNA3 भी कट कर रहा था और जो है ये क्रिस्पर के अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो भी कट कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो क्रिस्पर डिफेंस सिस्टम एक्वायर्स CRISPR डिफेंस सिस्टम अकर्स इन 3 स्टेप: एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें कि मैंने बताया कि किस तरीके से जो फॉरेन डीएनए मटेरियल है वो स्पेसर्स के बीच में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो इसके अलावा भी जो कैस सिस्टम्स हैं वो अलग अलग तरीके के, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप 2 बिकॉज टाइप 2 इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, रीजन बीइंग कि उसमें केवल एक Cas9 प्रोटीन ही है, एक तरीके से एंडोन्यूक्लियस की तरह से काम करके एडिटिंग टूल की तरह से इवेंचुअली काम कर पा रही है। ठीक है, तो टाइप 1 एंड टाइप 3 के बारे में वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट मच। ये डिफरेंट टर्म्स हैं क्रिस्पर आरएनए ये के बारे में। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर एक और आया। अब हम टूल की तरफ धीमे धीमे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर तो जब तक हम वायरस के बारे में बात कर रहे थे तो सिंपल था कि बैक्टीरिया का काम है जो फॉरेन इन्वेडेड जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसको डिग्रेड करना, राइट। इसके अलावा उसका कोई और पर्पस नहीं है। लेकिन जब हम किसी चीज को टूल की तरह से यूज करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी यूटिलिटी क्या है, व्हाट फंक्शनैलिटी दिस पर्टिकुलर थिंग इज प्रोवाइडिंग टू अस एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज इट। ये है प्रोटो स्पेसर एडजेसेंट मोटिव। अब एक बात, ये बात समझना, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जब हम इसको टूल की तरह से यूज करना चाहते हैं तो जो टारगेटिंग हो रही है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि जो वायरस का जो वो पोर्शन जो लेके आया था, तो इसका मतलब वही इम्यूनोजेनिक है ना, वही एक इम्यूनिटी, वही एक मार्कर है, एक तरीके से वही एंटीबॉडी है उसकी जो कि जाकर बाइंड कर रही है, अगर बहुत ही लेमैन वे में उस बात को कहें, जिस तरीके से हम समझते हैं। तो वो प्रोसेस मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे हो रहा है, वो स्पेसिफिसिटी कहाँ से आ रही है, वो बाइंडिंग हो कैसे रही है। तो एक तो भाई टारगेट सीक्वेंस है, राइट, जो वही टारगेट सीक्वेंस जो कि वायरस ने छोटी छोटी पीसेस में 18 से 20 बेस पेयर के टुकड़ों में अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के बीच में सेव की हुई थी, राइट। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इन एंजाइम्स की, जो कि रोवेक्सी, जो 2 एंडोन्यूक्लियसेस हैं इसके अंदर, हमारे Cas9 के अंदर, RUBC लिख लेना इसको, RUBC एंड HNH, ठीक है, ये दोनों ही एंडोन्यूक्लियसेस हैं जो कि Cas9 के पास हैं। एंड दीज एंडोन्यूक्लियसेस they recognize the PAM sequence and one endonuclease cut at the complementary strand where actually the sequence is binding, and another one is cutting on the non-complementary strand. So RUBC is cutting at the non-complementary strand, whereas HNH is cutting at the complementary strand. So यहाँ पे अगर अब आप देखें, अब यहाँ से शायद थोड़ी सी ये बात लिंक हो जाए जो पीसेस, बिट्स एंड पीसेस में आई हैं, दैट ए हम पे एक टारगेट सीक्वेंस है, वो टारगेट सीक्वेंस जैसे कि वायरस के केस में हमने देखा कि वो जाकर जो जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है।
इस टारगेट सीक्वेंस के बिल्कुल नेबरिंग में, प्रॉक्सिमिटी में एक पैम सीक्वेंस का होना रिक्वायर्ड है. वी नीड अ पैम सीक्वेंस. सो इन केस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, जिसका कि कैसनाइन सिस्टम है, उसके केस में वो सीक्वेंस है NGG. N is and can be any base, whereas GG has to be there at the 3' end. इस बात को आप बिल्कुल याद रख लें कि Cas9 जो कि टूल की तरह से यूज हो रहा है, उसके केस में NGG इसका पैम सीक्वेंस है. यानी कि एक बात और भी याद रख लें कि जिस तरीके से हमने कहा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरीके के इसमें मिक्सअप ना करें, कि 3 तरीके के क्रिस्पर सिस्टम्स हैं, और हम टाइप 2 सिस्टम की बात कर रहे हैं. टाइप 2 सिस्टम में भी कई तरीके के कैस प्रोटीन्स हैं, कई तरीके के Cas9 प्रोटीन्स हैं, और इन डिफरेंट बैक्टीरिया you have different type of Cas9 protein and those Cas9 protein may have different PAM sequence. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में Cas9 की जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस के केस में जो Cas9 प्रोटीन है, उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो है NGG. अब आप ये देखिए बी में जो इन्होंने दिखाया है, इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, जिसमें कि ये 20 बेस पेयर का, 20 न्यूक्लियोटाइड का ये टारगेट सीक्वेंस है, जो कि इसने होमोलॉगस बाइंडिंग कर लिया, और सामने की तरफ इसमें पैम सीक्वेंस है. ठीक है, इट इज रिकॉग्नाइजिंग द पैम सीक्वेंस एंड द सीक्वेंस इज अलाइनिंग इटसेल्फ ऑन द होमोलॉगस आर्म हियर. और अब जो आपका Cas9 के जो दोनों एंडोन्यूक्लियस हैं, एक यहाँ निक क्रिएट करेगा और दूसरा दूसरे, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे निक क्रिएट करेगा, दूसरा नॉन कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे निक क्रिएट करेगा. राइट, सो दिस इज हाउ दिस थिंग विल बी कट. अब आप ये देखिए, यहाँ पर इस बात को आप देख सकते हैं कि जब ये बाइंडिंग हो गई और ये डुप्लेक्स बन गया, और जब ये कटिंग हुआ, तो आपको क्या मिले? इंडेल. इंडेल का मतलब क्या है? इंसर्शंस और ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको. तो इसका इंडेल कहने का मतलब ये है कि इंसर्शन भी मिल सकता है और डिलीशन भी मिल सकता है. ठीक है, और ऐसा क्यों होगा, इसके बारे में इसी बात को बताने के लिए मैंने ऊपर वाली स्लाइड रखी थी कि किस तरीके से रिपेयर होती है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट अ बिट लेटर. दूसरा मैकेनिज्म क्या है? ये तो एरर प्रोन रिपेयर आपकी हो गई, लेकिन अगर आपका जब आप दोनों आर्म, जब दोनों स्ट्रैंड्स में कट क्रिएट हुआ और आपके पास कोई ऐसा चीज भी है जो कि आप होमोलॉगस, जो उस जगह के होमोलॉगस है, आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप वहां पे कुछ और इंसर्ट करना चाहते हैं, उसको आपने एक एज अ टेम्पलेट डिजाइन किया हुआ है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और उसको टेम्पलेट मान के अगर उसने रिपेयर कर दिया, तो वो होमोलॉगी डायरेक्टेड रिपेयर मैकेनिज्म से उस पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए को इस कट में इंसर्ट कर देगा. सो लेट्स जस्ट नाउ गो बैक टू दिस वन प्रीवियस स्लाइड, that when you have a double stranded break which is being created by Cas9 protein, you have two mechanisms to repair it. One is non-homologous end joining, another is homologous homology directed repair mechanism, right? तो जब नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग हो रही है, मतलब जो भी कटा था, जहां से भी कटा था, जो भी गया था, the system does not care, it just stick it, glue it together, whatever it is. चाहे मैच हुआ, कुछ डिलीट हो गया, कुछ और वहां पे आके इंसर्ट हो गया, it doesn't care. But homology directed repair में it will try to find a homology and then repair it. ठीक है, and these two things, both of these things are being used when we are using the CRISPR-Cas9 system as a tool. ठीक है, so target recognition by Cas9 require both a seed sequence in the CRISPR-Cas9 and a GG dinucleotide containing PAM sequence. So ये बात ध्यान रखी जाए, I'm just repeating it, कि जब भी हम टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, हमें टारगेट सीक्वेंस चाहिए, लेकिन do not ignore PAM. PAM is definitely required. PAM is specific to different bacteria. It depends on which bacteria you have isolated Cas9 protein, and depending on that bacteria, the Cas9 sequence will vary. The sequence of the sequence to be targeted actually is providing specificity. लेकिन Cas9 के केस में PAM sequence
भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने देखा कि वो केवल 3 बेस पे अलोंग पायरोजेंस के केस में, और जो कि द मोस्ट यूज्ड Cas9 प्रोटीन है, और दैट इज एक्चुअली अ लिमिटेशन. इसमें लिमिटेशन ये है that you always have to have a PAM sequence next to the sequence you are trying to target, right? So that is why people are trying to find more Cas9 protein, or they are trying to see what is the limit to which the Cas9 can tolerate, you know, NGG को अगर NGC हो जाए, can it tolerate, या NNCG हो जाए तो can it tolerate, क्योंकि then only you would have, in that case only you would have more target sites where you can cleave and insert the fragment of your interest. And in the same way, people are trying to find other Cas9 proteins, like you can see here, where they have different PAM sequences or bigger PAM sequences. So the specificity, to increase the specificity and to increase the targetability of the tool. Okay, and in the tool, what people have done, they have made a one single vector या one single RNA. जब हम artificially, जब हम in vitro RNA synthesize कर रहे हैं हम, तो tracer RNA और guide RNA एक साथ ले रहे हैं. गाइड, उसको जब गाइड RNA हम कह रहे हैं, तो हमारे पास ये 20 बेस पेयर का जो ये सीक्वेंस था वो भी है, और ट्रेसर इसी के साथ सिंथेसाइज है. ठीक है, क्योंकि ट्रेसर जो Cas9 प्रोटीन है उसके अंदर जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग हो रही है, उस बाइंडिंग के लिए ये आरएनए जरूरी है. जो डिफरेंट प्रोटीन कंपोनेंट्स मैंने इसमें दिखाए हैं, दे फोल्ड एंड क्रिएट specific create the grooves to specifically bind the tracer RNA. That is how this whole specificity is coming. ये पूरा complex you need for the binding in the Cas9 protein, right? इसके अलावा जो एक ट्रेसर का फंक्शन था कि आपको RNase 3 चाहिए था, जो वायरस के केस में था, क्योंकि आपको उसको ब्रेक भी करना था, मल्टीपल क्रिस्पर RNA जॉइंट थे, वो तो आपको जब आप टूल बना रहे हैं आपको चाहिए नहीं ना, तो आपको पूरे के पूरे ट्रेसर RNA की जरूरत ही नहीं है. जिस पोर्शन की आपको जरूरत नहीं है वो सब आपने हटा दिया. आपको ये पोर्शन चाहिए जिससे कि Cas9 में असेंबल हो सके, आपको गाइड RNA चाहिए जिससे कि आपने टारगेट सीक्वेंसेस को टारगेट कर सके. उतने ही पोर्शन को आपने टूल के लिए लिया, रेस्ट ऑफ दैट यू हैव रिमूव. और अभी भी आप देखेंगे लोग लगातार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चीजों को मिनिमाइज कर रहे हैं, जिससे कि सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, टूल को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके. CRISPR adapted for, अब ये जब आपका टूल बन के तैयार हो गया, whole thing as a tool to create complex animal models of human inherited diseases or cancer, performing genome wide screening in human cells, right? Pinpoint. अब आप देखो इसने आपको क्या important handle दिया कि आप किसी भी जीन को टारगेट कर सकते हैं, किसी भी रीजन को, मुझे जीन नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब हम रेगुलेटरी रीजन्स पर भी काम कर रहे हैं. कैंसर में तो बहुत सारे रेगुलेटरी रीजन्स भी हैं जो कि अफेक्टेड हैं, होते हैं, और हम रेगुलेटरी रीजन्स को भी टारगेट करना चाहते हैं. तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन स्पेसिफिकली कैन टारगेट द पार्ट ऑफ जीनोम इटसेल्फ. Cas9 से पहले जिंक फिंगर प्रोटीन्स एंड टैलेंस भी आए थे, लेकिन इनकी एफिशिएंसी, जो टारगेटिंग एफिशिएंसी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि क्रिस्पर की है. टैलेंट से तो लोगों को बहुत होप्स थी, लेकिन क्रिस्पर इज मच बेटर. यू कैन टारगेट डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड एंगल. और जो बात अभी एक बात हो रही थी कि एक तो हो गया, आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से देख लें कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर जीन को म्यूटेट करना है, राइट, तो आपने एक क्रिस्पर आरएनए डिजाइन किया, वो जाके होमोलॉगस अपनी होमोलॉगी आइडेंटिफाई करके बैठा, वहां पे एंजाइम ने काटा, कट क्रिएट हुआ, और अगर नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग हुई तो वो जीन तो म्यूटेट ही हो जाएगी, राइट, क्योंकि वहां पे छोटे इंसर्शन और डिलीशन अगर क्रिएट हो गए तो वो जीन म्यूटेट हो जाएगी. दैट इज द इजिएस्ट वे. इवन आई यूज दिस टेक्निक फॉर दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन ओनली, इंडेल क्रिएट करने के लिए. अब होमोलॉगी बेस्ड रिपेयर में अगर आप कोई भी होमोलॉगस आर्म अगर इसको दे देते हैं, तो आप उस पोर्शन को, जैसे कि अगर मुझे इस रीजन को टैग करना था या मुझे इस रीजन में कोई और चीज इंसर्ट करनी थी, कोई डोमेन इंसर्ट करना था, तो मैंने छोटे होमोलॉगस आर्म्स दे दिए यहाँ पर, और बीच में जो चीज मैं इंसर्ट करना चाहती थी वो दे दिया. तो जब व्हेन इट कट्स, then it identified this small portion as a homology arm, and then this portion is inserted in the new DNA, and that is how you have
न्यू डिजाइंड एडिटेड डीएनए। अब आप देखिए कि जब आप इसे डेड क्रिस्पर बना रहे हैं, या आप इसको इस तरीके से टूल के लिए एडिट करें कि मान लो आपको इसको ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर बनाना है, तो आपने क्या किया, जैसा कि आपको पता है कि इसमें दो एंजाइम्स हैं, आरयूबीसी एंड एचएनएच। अगर आपने आरयूबीसी को म्यूटेट कर दिया, Cas9 प्रोटीन के आरयूबीसी को म्यूटेट कर दिया, तो अब क्या होगा, ये Cas9 प्रोटीन जाके डीएनए पे बाइंड तो करेगी, लेकिन केवल निक क्रिएट करेगी। तो इसको पूरा काटेगी नहीं, केवल निक क्रिएट करेगी, राइट? क्योंकि there's only one enzyme, and if you have mutated the attachment site, then this protein will stay here itself. इन चीजों को डेड क्रिस्पर डी, अगर आपने कई बार देखा होगा, जो पढ़ रहा था, टेक्निकल पढ़ रहा था, तो वो इसको डेड क्रिस्पर कह रहे थे। देखो, लोकलाइज विद डिफेक्टिव CRISPR9। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने Cas9 प्रोटीन पर ही एक एक्टिवेटर एसोसिएट कर दिया, राइट? दिस एक्टिवेटर इज बाउंड विद द Cas9 प्रोटीन, but because this Cas9 is defective, it can't detach itself, and that is the advantage. अगर कोई जीन ऑलरेडी इनएक्टिव है, एक्टिवेटर नहीं बन रहा है, तो आपने CRISPR की मदद से उस जीन के पास एक्टिवेटर पहुंचा दिया और वो जीन एक्टिवेट हो गई। You see what I'm saying? किसी भी जीन को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत है, राइट? जो जाके डीएनए से बाइंड कर सके, राइट? अगर वो प्रोटीन जाके डीएनए से बाइंड कर सकती है, लेकिन CRISPR तो बाइंड करके उसके पास तो दो एंजाइम है, वो कट कर देगी। लेकिन अगर आप उसके एंजाइम्स को म्यूटेट कर दें, तो बाइंड तो करेगी लेकिन कट नहीं कर पाएगी, राइट? और अगर वो कट नहीं कर पाई और आपने उस प्रोटीन पे कोई और यूनिट जोड़ दी, जो कि जिस आपका टारगेट जो जीन है उसका एक्टिवेटर है, तो वो उस जीन को एक्टिवेट कर देगी। तो आपने एक तरीके से किसी नॉन फंक्शनल जीन को, जो कि केवल इसलिए फंक्शनल नहीं है कि मान लीजिए उसका एक पर्टिकुलर एक्टिवेटर उस एनिमल के अंदर बनता ही नहीं है, तो आपने टारगेटेड तरीके से उस एक्टिवेटर को उस जीन तक पहुंचा दिया। सेम वे आप किसी जीन को, अगर कोई जीन ओवर एक्टिवेटेड है, तो आप उसको रिप्रेस कर सकते हैं बाय एसोसिएटिंग द Cas9 प्रोटीन विद द रिप्रेसर। एंड सेम वे आप किसी भी जीन को टैग कर सकते हैं, और इवन आप क्रोमैटिन को भी टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वे कि आप इस डेड CRISPR को यूज करते हुए जो भी चीज इससे लिंक कर देंगे, ये उस फंक्शन को करना शुरू कर देंगे। तो ये इस इमेज में इन्होंने डिफरेंट किस तरीके से आप एपिजेनेटिक मॉडिफायर्स को जीनोम एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ये बताया है। किस तरीके से आप क्रोमैटिन को टैग कर सकते हैं, ये इस इमेज में बताया है, इस रिव्यू में बताया। मैं तुम लोगों को एक रिव्यू लिंक शेयर कर दूंगी। आई थिंक दैट इज प्रीटी मच